আঙ্কেল, কটা কথা আছে। কত কথা আছে? তুমি বসো, আমি টাইম করে তোমার না না, আপনার ড্রাফটের নিয়ে ব্যাপারটা বলছি। একটা ড্রাফট করিয়েছিলাম, এবার এটা আজকে বোনকে জমা দিতে বারণ করেছি। এতে হচ্ছে ব্যাপারটা সিগনেচার একটা আছে, একটা নেই। তো এটা এখন বারণ করে দিয়েছি বোনকে দিতে। কত টাকা? 3000 টাকা। ঠিক আছে, নিয়ে নেবে, অ্যালাউড। ওটা কোনো অসুবিধা হবে না তো? 10,000 পর্যন্ত একটা। আচ্ছা, না না, দেখুন একটা কেস হয়ে গেছে ওই জন্য। 10,000 পর্যন্ত একটা, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সিগনেচার থাকলে পেমেন্ট দিয়ে দেবে, ওটাই কোনো অসুবিধা। 10,000 পর্যন্ত একটা সিগনেচার, 10,000-এর উপর হলে ডাবল সিগনেচার। বলছি এই যে ড্রাফটটা, এগুলি নিয়মগুলো বলে দিলাম, মনে রাখো না। তোমাদের তো কম বয়স, তোমরাই তো মনে রেখে আরেকজনকে শেখাতে পারবে। সে তো ঠিক, এবার যদি ভুল হয়ে যায়। আজে বাজেগুলো বেশি মনে রাখো না। আচ্ছা, বলছি এই যে ড্রাফটটা আমার বাউন্স হয়েছিল, এই যেটা সিগনেচার ছিল না, এবার এর যে ধরুন যে পেনাল্টি ওইখানে কেটেছে, তো এটা আমি কোথা থেকে পাবো? কেন কাটে পেনাল্টি? মানে যে ড্রাফটটা বাউন্স হয়েছে, তো আমার যে ইনস্টিটিউটের অ্যাকাউন্ট থেকে তো টাকা চার্জ করেছে ওরা। সেটা তো ব্যাংক টোল দেবো, তুমি তাহলে নিয়েছো কেন? সেটা তো তুমি কিছু পাবে। ওইটা তো মানে ধরুন ওই ইনস্টিটিউটকে তো আমাকে দিতে হবে। তোমার ইনস্টিটিউট, তুমি যদি ইনস্টিটিউট যদি এরকম হয় তাহলে তোমার দিতে হবে। এখানে ব্যাংকের কোনো অসুবিধা নেই। না না, ও যদি বলে যে ব্যাংকের সই নেই, আমি চার্জ করবো, বলুক, চিঠি দিয়ে আমরা দেখে নেবো। না ধরুন এবারে এই যে চিঠিটা আমাদের দিয়েছে, তোমায় দিতে পারে, আমরা কি করবো? আমাদের যদি চিঠিতে আমরা না, তো ধরুন এই দোষটা তো ব্যাংকের। হ্যাঁ, তো আমাদের চিঠি দিই, আমরা তখন বুঝে নেবো। তো না না, মানে আমি কোথা থেকে পাবো? লসটা তো আমি বিয়ার করতে হবে। সেটা আমরা কিছু বলতে পারবো না। তুমি তো, তোমারও দায়িত্ব যে দেখে নেওয়া। তুমি না, এটা তো দেখুন, দেখো, শোনো, তুমি যখন ভোটার কার্ড পাও তখন তোমার নাম মিলেছে কিনা, অ্যাড্রেস, এটা তোমার দায়িত্ব। এবার যে ভোটার কার্ড ইস্যু করে তার সব দায়িত্ব না। সেটা তো ওদের আলাদা ব্যাপার। তাহলে যা তোমারও দায়িত্ব আছে যে তুমি অন্তত তোমার ডেট, নাম এগুলো দেখে নেওয়া। যদি তুমি শিক্ষিত, এবার যদি তুমি দাঁড়াও, এবার যদি তুমি ইলিটারেট হও তাহলে বলতে পারো যে হ্যাঁ দেখবো না, আমি তো বুঝিই না। তাহলে লিটারেট কেন তাহলে? এটাও ভারতের নিয়ম। আচ্ছা, এরকম ব্যাপার। তো আমি আরবিআই গাইডলাইন্স এনেছি, রিজার্ভ ব্যাংকের গাইডলাইন্স, এটার উপরে তো ইউকো ব্যাংক না। হ্যাঁ, এখানে লেখা আছে, আপনি দেখুন, ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য ব্যাংক, নট দ্য কাস্টমার। তুমি তোমার কমপ্লেন করো গিয়ে, যেখানে ইচ্ছে ম্যানেজারের সাথে কথা বলে যাও। তো ম্যানেজার তো আসেন যখনই এসে, হ্যাঁ, তুমি কমপ্লেন করতে পারো। তুমি যদি অতই জেনে থাকো তাহলে তো ড্রাফট নেওয়ার সময় তো বলোনি কেন? হ্যাঁ, তো আমি তো কাস্টমার, আমি কি করে বলবো? আমি কেন বলবো? কাস্টমার আবার কি? দোষটা তো ব্যাংকে। আবার ব্যাংকে তো দোষ করবেই, 10টার মধ্যে কেন করবে? ব্যাংক কি টাকা নিচ্ছে না আমার থেকে? আমি যখন ড্রাফট করালাম, তো আমার থেকে তো আপনি টাকাটা নিলেন। টাকা নিবেই তো। হ্যাঁ, এবার তো ব্যাংকেরই ডিউটি এটা, যে ড্রাফটে যখন আপনি ইস্যু করেছেন, তো ইউ মাস্ট সি দ্যাট ইট ইজ। আরে বাবা, আমার কি ডিউটি তোমার বলেছি? আমরা সারাদিনে 50টা লোকের সাথে কথা বলি, 5টা তো ভুলতেই পারে। রেল তার 10,000 গাড়ি চালায়, তো তার মধ্যে 50টা তো লেট হতেই পারে, 10টা তো অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে। তুমি বলো না, এগুলো কি সরকার না? আমরা তো সরকারি লোক। সরকারি লোক, তা আবার কি কথা বলছো তুমি? করছি, এবার আপনি রেগে যাচ্ছেন। রাগার কিছু না, তুমি যেগুলি বলছো তার উত্তর আমি তোমার কাউন্টার দিচ্ছি। তো আরবিআই গাইডলাইন্স বলছে এখানে এটা কাস্টমার দায়িত্ব। তুমি যদি বেশি চালাক, তো শোনো, তুমি যদি বেশি চালাক না হতে তাহলে আমাকে এত উত্তর দিতে হতো না। তুমি যদি অল্প চালাক হতে তাহলে উত্তরটা। গাইডলাইন্সটা তো আমি বানাইনি। তোমার গাইডলাইন্স আছে, তুমি তোমার জায়গা মতো তুমি যেতেই পারো। তাহলে আমি মানে আপনার বলের মতো কনজিউমার ফোরামে চলে যাবো। তোমার ম্যানেজারের সাথে কথা বলো না, আমি তো দিতে পারি না। ম্যানেজারের সাথে কথা বলো। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम बोले सर, एक तो हम ड्राफ्ट बनवाए थे, तो उस ड्राफ्ट का मेरा ड्राफ्ट बाउंस हो गया था क्योंकि चेक नहीं था उसमें। ठीक है, अब उसमें सॉरी साइन नहीं था, तो जो ड्राफ्ट मेरा बाउंस हो उसकी वजह से तो मेरे को लॉस बियर करना पड़े, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में उन्होंने उस ड्राफ्ट को जमा किया था, तो वो ड्राफ्ट बाउंस हुआ, तो उन लोगों का बैंक जो चार्जेस काटा गया है उसके वजह से वो चार्ज उन्होंने मेरे से मांगा, वो तो मेरे को देना पड़ेगा। डीडी, हाँ, डिमांड ड्राफ्ट। तो वो तो साइन दोनों मैंने 2 आदमी का सिग्नेचर लगता है उसमें से एक भी सिग्नेचर नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जैसे बाउंस हुआ, बिना सिग्नेचर आपके पास कहीं चला गया था क्या? बिना सिग्नेचर क्या है मेरे पास, तो जेरोक्स में अभी लाया नहीं हूँ। किसने दिया था आपको? मैंने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिया। डीडी किसको ने दिया आपको? मेरे को वहाँ पे से मिला था, थर्ड काउंटर में से जो वहाँ पे वो अंकल है, उन अंकल से मेरे को मिला था। साइन देखिए, मैंने तो रिसीव करके साइन किया, तो देखिए मेरा तो गलती नहीं है। एज ए कस्टमर मैं तो ड्राफ्ट चेक करके खुद से नहीं लूँगा, ये तो बैंक का ड्यूटी है कि मेरे को चेक करके वेरिफिकेशन हो के दे। मैंने तो आरबीआई गाइडलाइंस आपके सामने ले आया हूँ, देखिए क्या इसमें तो लिखा हुआ है, इट इज हेल्ड दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंज्यूमर टू नो whether the draft is to be signed by 1 or 2 persons or it is to be signed
साइन बाय एनी ऑफ द पर्सन। तो कितने साइन होंगे नहीं होंगे तो मेरे को जानकारी नहीं रहेगा ना, ये तो बैंक को जानकारी रहना चाहिए। अब जैसे ये जो लॉस बियर करना पड़ा है, नहीं तो वो तो बात ठीक है आपकी कि कितने साइन होंगे ये तो आपको नहीं पता, पर एटलीस्ट वन साइन तो मस्ट है। हाँ ये मस्ट तो है, बट आपको वो पता तो होना चाहिए। कंज्यूमर नहीं देखेगा ना, कंज्यूमर तो जब हाँ। ड्राफ्ट लेने आ रहा है ना आपकी ये चीज लिखी, इसमें जो लिखी है उसको ध्यान से, उसमें ये लिखा कि नहीं, तो यहाँ पे आपके और एक line और होंगे या एक दो केस होंगे। है। इट इज पेबल एट appellant was not honored by the appellant's bank on the ground that specimen signature number of second official signature is not Second. हाँ, it was held that it amounts to deficiency of service. It amounts to deficiency of service. सेकंड ऑफिसर का बात तो ठीक है, वो तो मैं खुद भी मान रहा हूँ, उसमें भी यही लिखा है। बट हमको तो देखिए आपका आदमी जब इसका भी है तो मेरा तो फर्ज नहीं है। नहीं, यहाँ तो फर्स्ट ऑफिसर का भी साइन नहीं बता रहे आप। हमको तो कोई सिग्नेचर के बिना ही draft एक दे दिया साइन गया। तो चाहिए मस्ट। तो वो तो मेरे को नहीं पता होगा, तो बैंक का ठीक है, डिपार्टमेंट होगा आप नहीं, आपको भी देखना चाहिए ताकि एक साइन मस्ट लिस्ट अब होना तो चाहिए। it is not the duty of the consumer to know whether the draft is signed or not. Whether the आगे अब यहाँ पे देखिए हाँ, whether- whether the draft is to be signed by 1 or 2%. When the draft was issued to the consumer, it was also the हाँ, duty. वो ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, It was also the duty. It was also the duty of the clerk at the counter to verify the same, note it in the register and take the signature when delivered to the customer. So I signed the document. जब मेरे को रिसिप्ट उन्होंने दिया, मैंने साइन करके उनको दिया, तो इट इज द डॉक्यूमेंट, मैंने ड्यूटी ऑफ द क्लर्क आपका। तो वो तो क्लर्क ने अपना ड्यूटी नहीं निभाया ना। वो चलो मैं तो मानता हूँ कि उधर भी गलती है, गलती आपकी भी है इसके तहत। इसमें ये लिखा है कि आपको ये नहीं पता कि इसमें एक साइन से चलेगा या दो साइन चलेंगे। मेरे को तो यही नहीं पता कितने साइन लगेंगे हाँ, नहीं लगेंगे। मेरे को बिना साइन के पकड़ा दिया गया। बिना साइन के कोई चीज होती है क्या? हमको तो दिया गया, हम तो सबूत दे सकते हैं, मेरे पास जेरोक्स है। नहीं दिया गया तो बट आपको भी हम तो देखना कल चाहिए आके ना, उसको साइन साइन करेंगे। होना चाहिए। हम तो कल एक आके साइन उसको का sign एक कराएंगे। जैसे कॉलम होता है नीचे, सिग्नेचर का कॉलम होता है, ब्लैंक पड़ा है, तो वो आपको नहीं देखना चाहिए था। इसमें मेरा क्या गलती है आप कि ये हमने नहीं देखा। ये पढ़ा रहे बट हो। मेरा तो ड्यूटी नहीं है, मैं वो चेक ठीक है। करूंगा। उसकी भी क्लर्क की भी गलती है कि उसको करवाना चाहिए, पर ये आप नहीं कहो कि आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। आपकी भी गलती है कि एक भी साइन नहीं है, एटलीस्ट वन साइन तो होना चाहिए मिनिमम। आपको मैं ये पूरा पेपर आपको मैं देकर पढ़ लिया, चले जाता मैं हूँ। तो आपने पढ़ाया, मैं आपने समझ पूरा रहा हूँ। पढ़िया, आपने पूरा तो मैं पढ़िया। उसकी पूरे हाँ, यहाँ पे और भी कुछ है। हाँ। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इसमें। एक मिनट मैं थोड़ा देख के बताता हूँ आपको। Wrongful dishonor of checks due to negligence or mistake on part of the bank has been held to amount of deficiency in service. So it is a mistake of bank. We accept it. मैं रॉन्गफुल तो ठीक है, अगर हाँ। कम से कम एक साइन तो देखना आपकी ड्यूटी। नहीं, यहाँ पे और भी है। हाँ, क्या है? Dishonor of duties due to lapse or omission on the part of the officials of the bank, like non-affixation of signatures, failure to mention code number, etc., have also been held to ठीक be है, amounting वो to चीज़ तो मैं deficiency in service. वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो कलर की भी गलती हाँ, है। तो यहाँ पे नॉन बट आपकी भी गलती है, सिर्फ आप एक मिनट आप वही बात पकड़ रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया बैंक लाइक नॉन एफिक्सेशन ऑफ सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स में तो इट इज नॉट सिंगल सिग्नेचर, सिग्नेचर्स इट इज प्लूरल। प्लूरल तो आपका यहाँ पे डबल है। ये तो आपका डायरेक्ट पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ ड्राफ्ट के अंडर में आरबीआई का मैंने वेबसाइट से निकाला। तो मैं किस पॉइंट पे गलत हूँ आप बताइए। नहीं, वो आपने देखा, आपको तो ये तो केस है, ये तो इस केस के तहत हुआ। आपने जो देखा ये कोर्ट केस हुआ था। हाँ। ये तो केस लॉ मैंने बताया आपको। केस इट इज हेल्ड इन द केस ऑफ मिस्टर नानालाल राजगुरु वर्सेस स्टेट बैंक। ये तो इनका केस के तहत हुआ। ये जो बताया केस बैंक केस के हिसाब से हुआ। तो केस- बट आरबीआई को जो मेन गाइडलाइन माने जो मेन आपका गाइडलाइंस है उसके ठीक तहत है। तो इट इज द wrongful dishonor of checks due to negligence or mistake on part of the bank has been held to amount deficiency in service. अच्छा, यहाँ पे ये भी बोला गया dishonor of duties due to lapse or omission on the part of officials of bank like non-affixation of signatures. So non-affixation of signatures that means कि आप मेरे को तो non-affixation ही मिला है ना। So I got a non-affixated document. आप ऐसे कैसे ले लो बिना साइन किया भाई, ये बताइए। ये तो ड्यूटी भी नहीं है मेरा देखना। नहीं, साइन देखने की ड्यूटी नहीं ड्यूटी है। अच्छा। हमको तो बैंक को पैसा दे रहे हैं उस चीज का। नहीं। बैंक जब आपको आप जब नहीं। हमको ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं तो इट इज नॉट माई मिस्टेक, नहीं। यू आर चार्जिंग फॉर इट। उसकी भी गलती है, साथ मार्क की भी गलती है। कि एक भी साइन नहीं है, आपको ये नहीं पता कि इस डीडी पे, ये हम मानते हैं बात को, वो तो पहले ही बताया कि इस डीडी में एक साइन हो गया या दो साइन हो गए।
ये आपको नहीं पता। हमको कुछ भी नहीं पता है ड्राफ्ट नहीं, के बारे आपको में। नहीं, किसी को भी नहीं पता होगा। आपको अकेले के लिए नहीं कह रहा मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक को ये नहीं पता कि इस पे 1 साइन होगा, 2 साइन होगा। ये बैंक को पता है कि 1 साइन होगा, 2 साइन होगा, ठीक है। बट एक भी साइन नहीं है तो क्या पब्लिक को ये नहीं दिखेगी इसमें एक भी साइन नहीं है? तो देखिए, मेरे वो काम था, मैंने हड़बड़ी में बनवाया, हड़बड़ी में गया हूँ। तो बैंक में तो जल्दबाजी उसको कह रहे हैं दे, अरे वो मैंने उनको तो दे के गया, तो ये तो मेरे को आधा घंटा में मिलना चाहिए, मैं तो 1.5 घंटा टाइम दे के गया था। मैंने तो 10 बजे सब कुछ जमा कर दिया, मेरे को 12:30 बजे सैटरडे को मिला। आप बताइए मैं और कितना टाइम दूँ? सैटरडे का दिन है, 2.5 घंटा आपके हाथ में रहता है, 10 से 12:30, तो मैंने तो 12:30 बजे ड्राफ्ट लिया है यहाँ से, तो 2.5 घंटा मिल रहा है। इस बीच में भी अगर आपका बैंक का आदमी चेक नहीं करेगा तो इसमें मेरा गलती कहाँ से? ठीक है, मैं तो मान रहा हूँ कि गलती क्लर्क की भी है, साथ में आपकी भी है, इसलिए साइन वाइन तो देखना जरूरी है। बट एक आरबीआई तो ये बात नहीं बोल रहा है। आरबीआई कैसे? आरबीआई तो ये बात नहीं बोल रहा है कि कस्टमर का ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बैंकर। कोर्ट ने तो बोला है ना कि कम से कम ये नहीं कंज्यूमर को पता कि 2 साइन होंगे या 1 होगा, बट साइन होगा ये पता है उसको। कंज्यूमर को इतना पता है, कंज्यूमर को तो कुछ ना कुछ साइन होगा। अगर कंज्यूमर अनपढ़ गवार रहा, मान लिया मैं पढ़ा लिखा हूँ, बट एक कंज्यूमर अगर अनपढ़ गवार रहा, देहाती रहा, तो उसको कहाँ से पता? साइन करा है वो भी नहीं लेके जाते ना। अगर एक भी किसी को नहीं पता है तो बैंक का तो ड्यूटी बनता है ना कस्टमर को एडुकेट करना। वो ठीक है, वो तो मैं कह रहा हूँ कि क्लर्क की गलती है, साथ में आप जो कंज्यूमर की भी गलती है, मतलब कंज्यूमर के ऊपर मैंने दोनों की गलती है। क्योंकि आप कंज्यूमर के बिल्कुल नहीं ऊपर देखोगे, आप बिल्कुल नहीं देखोगे। नहीं, मैं तो नहीं देखूंगा। बिल्कुल नहीं देखो, क्यों नहीं देखोगे? आपको कोई आप कैश जमा कराओगे, वो साइन करके नहीं देता, आप लेके चले जाओ। तो चेक है, ये तो डिमांड ड्राफ्ट है, कुछ भी हो, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट में फर्क है। अच्छा, आप ड्राफ्ट आप बैंक बना के देते हैं, हम नहीं बनाते हैं। वहाँ कैश जमा कराते हो, वो लेकर रख लेता है, आपको ऐसे फाड़ के देता है, तो आप चले जाओगे। नहीं, वो तो मैं कैसे उसको कैसे देखोगे? बट मैंने तो चार्ज दिया है यहाँ पर। ये भी वही चीज है, ये देखना अपना जो है कि मेरे को उस प्रॉपर रिसिप्ट जो है वो ऑथेंटिकेटेड है या वैसे दे दिया किसी ने। आपको कैश जमा कराएंगे काउंटर में, मेरे को ये बताओ, वो कैश लेकर रख लेगा और आपको अपनी पर्ची रख ली और आपको वो ऐसे पकड़ा दी, आप चले जाओगे क्या? नहीं, ये वही मैं बात बता रहा हूँ। तो मैंने तो यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट बनाया, ये ऑर्डिनरी और कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, ड्राफ्ट हो या कैश रिसिप्ट हो, चलिए मैंने मान लिया होगा, बट दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड। ये जब मेरे को कोई डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी आदमी भी आएगा उसको भी पता है कि ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। हाँ जी, बट अब जैसे मैंने जब ड्राफ्ट लेने के लिए मैं गया, मैंने तो काउंटर पे उनका रिसिप्ट सिग्नेचर दिया, उन्होंने मेरे से रिसिप्ट मांगा, मैंने वो रिसिप्ट शो किया, तब उन्होंने मेरे को काउंटर स्लिप दिया, बोले सिग्नेचर करके आप रिसिप्ट आप ही बनवाने वाले हो, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्लर्क। वो रिकॉग्निशन होती है कि ड्राफ्ट रिसिप्ट दिया कि कोई ना ले जाए, जिसके हाथ में रिसिप्ट है ड्राफ्ट वही लेके जाए जिसने पैसा जमा किया। हाँ। ठीक है, वो होता, उसको ये नहीं देखना उसने क्यों लिया, उसने इसलिए लिया था कि ड्राफ्ट का पैसा इसका आपने जमा किया, वो उसी को हैंड ओवर किया जिसने जमा किया। मैंने वो किया अलग था, चीज़ सब है। कुछ मैंने वो किया। ठीक है ना, ये तो वो बात है, इसलिए मांगा उसने कि वो रसीद हो सकता कोई और लेने आ जाएगी, ये मेरा ड्राफ्ट है। आप मतलब ये जो लॉस है अल्टीमेटली मेरे को बियर करना पड़ेगा, जो बाउंस होने के चार्जेस। वो बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आपकी अकेले की गलती है, मैं तो पहले कह रहा हूँ कलर की गलती है, कलर की ताली एक हाथ से नहीं बचता, मैं भी मान लिया कि चलिए सबका गलती, दोनों की गलती, चलिए दोनों का गलती है, बट वो लॉस तो मेरे को हुआ, अब तो मैं उस लॉस को कहाँ से भरूँ? मैं तो मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए तो 300 भी जाता, मैं तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, मेरे को 200-300 का भी लॉस होता है, तो सर मेरे को भी लॉस है। मैं तो मानता हूँ कि भाई दोनों का गलती है, देखो थोड़ा आपकी भी ड्यूटी थी कि कम से कम ज्यादा नहीं, आपको ऑर्डिनरी आदमी या बाहर का कस्टमर को नहीं पता कि इस ड्राफ्ट से 2 साइन से चलेगा या मेरे को जैसे बोला उन्होंने मेरे को, ये असिस्टेंट मैनेजर सर, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, ये असिस्टेंट मैनेजर सर, मैंने खाली इनसे पूछा कि ये गलती हुआ जो इसका जिम्मेदार कौन है, उन्होंने बोला मेरे को कि हम लोग दिन में 50 काम करते हैं, 2-4 गलती हमसे हो ही सकता है। तो आप ऐसे इतने पोजीशन वाला आदमी अगर ऐसा बात बोलेगा तो कस्टमर को गुस्सा आएगा कि नहीं, बताइए। वो तो बात ठीक है आपकी, तो हम तो ऐसे जनरल कस्टमर आएंगे, ह्यूमन आदमी है तो गलती कर सकता है ना, ठीक है, हम ये नहीं बोलते, हम लोग इंसान हैं, हम लोग से भी गलती होती है, उससे भी हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, उससे भी वो भी इंसान है, ऑब्वियस बात है, हम तो ये बात से कभी नहीं हट रहे, वो भी तो आपकी तरह हम तो बोल रहे हैं कि मेरा गलती भी हो सकता है, किसी का भी गलती हो सकता है, गलती तो अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता तो बैंक तो मेरे से चार्ज काट ही लेता ना, तो बैंक से जब गलती हुआ तो बैंक को तो कायदे से मेरे को मेरा लॉस रिम्बर्स कर देना चाहिए। गलती तो दोनों की तरफ से है ना, एक ये मत कहो सिर्फ। अच्छा, जब दोनों की गलती भी अगर होती है तो चार्जेस भी तो हाफ होने चाहिए, पूरा ही मैं लॉस दिया तो वो मैं मान गया आपकी बात, मैं मना नहीं कर रहा कि उसमें कर रहा हूँ, पर 50-50 गलती आपकी भी 50% है, क्योंकि आपने तो देखा नहीं कि ऑथेंटिकेट नहीं है, उसकी ये है कि उसने को भी देखना चाहिए था कि ये साइन
मतलब दोनों जगह गलती करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कह सकता कि सिर्फ आपकी अकेले की But still, it is ये the भी नहीं duty कह of the सकता कि सिर्फ उसकी अकेले की गलती। देखो भीड़ भाड़ में आदमी तो कंप्यूटर तो नहीं है ना, थोड़ा गलती कर सकता है। वो तो बनी हुई बात है अंकल जी, मैंने 100 बार आपकी गलती हमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। गलती हो जाती है, पर अगर दोनों में से एक भी सतर्क होता है तो गलती पकड़ी जाती है ना, है ना। आप भी होते चलो मैं यार मेरा तो लास्ट डेट था, देखिए मेरे को ड्राफ्ट अर्जेंट बेसिस पे हाँ जमा वही करना तो है, है। तो मेरे को तो करना पड़ा। किसी वजह से जल्दबाजी में या किसी वजह से क्या होता है, मन में टेंशन होती है, बाद में उस टेंशन तो ध्यान मेरे नहीं को, रहता। बैंक को किस चीज का टेंशन था? नहीं इनके पास भी तो देखो भीड़ लगी काम तो बहुत के काम होते हैं, डिफरेंट हाँ, टाइप के काम तो होते हैं। सिर्फ डीडी नहीं है, अकाउंट भी खोलना है, डीडी भी बनाना है, एफडीआर भी बनानी है, केवाईसी भी करना है, कोई क्वेरी भी करना है किसी को, तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब होती है ना वो, मल्टी। ये नहीं कि एक ही तरह का स्पेशलाइज काम कर रहा है ना वो, तब तो वो आदमी जाए उसको अभी ये कर दिया, उसके बाद कोई एफडीआर वाला आ गया, कभी केवाईसी वाला गया, अकाउंट ओपनिंग वाला आ गया, कभी मेरे को देखिए वो उन्होंने checkbook बोला वाला था आ कि गया। तुम ये 12 सब बजे होता के है। बाद आओ, तो मैं 12:30 बजे जाके ड्राफ्ट लिया हूँ। वो तो मैं बोला ना दोनों जगह गलती हुआ है, क्योंकि उसकी भी गलती है, थोड़ा और पेशेंटली काम करना चाहिए था, पेशेंस मतलब और थोड़ा 78,000 is आपका भी वो है कि यार कम से कम कोई भी डॉक्यूमेंट यही नहीं करा मैं बाहर भी, अदरवाइज ऑल्सो बाहर बैंक से बाहर भी कोई काम आपको जैसे कोई बिल जमा करा, ऑब्वियसली हम कोई भी डॉक्यूमेंट करते हैं Authentication तो- कस्टमर को खुद सतर्क रहना हाँ, चाहिए, authentication। बट जो काम ही मेरा नहीं है हाँ, यहाँ इस मामले में, ड्राफ्ट के मामले में तो मेरा काम नहीं है। बिल हो या कुछ भी हो, आप बिल भी जमा कर कराऊंगे वहाँ भी देखो कि मेरे को प्रॉपर रसीद मिला हुआ, ऑथेंटिकेट है ना। कहीं कुछ और भी जमा करना, कुछ भी चीज़ जमा करना चाहे वो तो ऑथेंटिकेटेड है, या कहीं से कोई तुमने परचेज किया बिल उसने काट दिया, साइन नहीं किया, आप जरूर देखो भाई इस पे साइन कर दो, है ना। तो ये चीज़ें ना कॉमन वो होती हैं ऑर्डनरी उसकी, तो चलो दोनों के मैं कहता हूँ कि बोल रहे कॉमन सेंस है, बट आपको दोनों कॉमन common सेंस हर समय नहीं काम करता, आदमी टेंशन में रहता है तो कॉमन सेंस नहीं रहता है। यही तो ह्यूमन एरर है, यही तो ह्यूमन एरर है, नहीं तो कंप्यूटर में और ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है। नहीं, फिर भी आप गाइड कीजिए, अब हम ये क्या करें इस चीज़ का, हाँ जो लॉस हुआ उसका हम क्या करें? क्या चार्जेस लगेगा? अभी हमको पता नहीं, हमको स्लिप मिलेगा 100 रुपये लगे होंगे और क्या लगे होंगे? ना, अराउंड 300 पड़ेगा, इतना ना ना नहीं। क्यों पता नहीं मेरे को, किसको जमा किया था? मैं तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया, तो उन्होंने उनको HDFC बैंक में उनको खुलवाया शायद था। वापस भी ना लगे, बड़ी इंस्टीट्यूशंस को तो वापस चार्जेस भी नहीं लगते, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है उनको चार्जेस लगते भी नहीं है। नहीं, मेरे को वो चीज़ नहीं पता, तो लाखों रुपए पैसा पड़ा होता है ना वहाँ, उनको शायद चार्ज लगे भी ना, 1 रुपये भी ना लगे, है ना। ठीक है, उनको वेव कर देते हैं वो, क्योंकि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बट बहुत- स्टिल मैं तो इस मामले को थोड़ा ध्यान आगे से दूंगा, आप भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। मैं कंज्यूमर फोरम में इसको लेके जाऊंगा, मैं आपको आप भी- पहले से बता दे रहा आप भी हूँ, क्योंकि मेरा गलती नहीं है एज ए क्लाइंट आपका, मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पे मेरा गलती है। नहीं, देखो 50-50 गलती तो है, ठीक है, आप वो तो मैं, आप मेरे को आप बोल रहे हैं, मैं तो आरबीआई का, मैं तो उतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि आरबीआई के बारे में सब कुछ जानूँ। आप लोग बैंक के एम्प्लॉई हैं, आप लोग को सब, हम लोग को गाइड करना ड्यूटी आपका है। आप भी हमको अगर ऐसे बोलेंगे कि मेरा गलती है, मैं आपको तो आप कस्टमर को सिखाइए कैशियर को आप कैश दे के जाते हो और वो बिना साइन किए आपको रसीद देते, आप ले जाएंगे क्या? मुझे इस बात का जवाब दो। कैश में जमा कर रहे हो, वो बिना साइन किए आपको रसीद देते, वैसे पहाड़ की रसीद दे देता है, आप ले जाओगे क्या? आप जरूर देखोगे, बिना देखे कोई नहीं ले जाता। ठीक है, मैं देखता हूँ पता क्या करो, करूँ। उनका मेरे को लगता नहीं कोई चार्ज लगता, लगेगा तो बताना मुझे उनका कितना क्या लगेगा, वो तो कुछ लिख के देंगे ना आपको। हाँ, वो तो मेरे को दिया जाएगा। हाँ लेकिन लिख के ले आएंगे तो फिर लिया ना लेटर देखेंगे, ठीक है, मैं लेटर आएगा ना कोई आपको चार्ज नहीं जा, हाँ, वो तो मेरे को दिया जाएगा, उसके लिए आएगा तो ले आना। ठीक।